Dear students, in this lecture we will discuss about differentiation. In previous 8 lectures, we have studied about continuity. There are 6 different types in continuity, and all types are completed. Now the differentiation starts. What is the definition of differentiation? Let f AB to R and C belongs to AB. You can see function f is defined as AB to R, so open interval AB is the domain of f and the codomain is R, and certain value C which is belongs to AB. Let H is a very small real number, so that C plus H belongs to AB. कहने का मतलब यही है कि if C belongs to AB, then C plus H also belongs to AB. So H is very small. The value of H is very, very small. So if C belongs to AB, then C plus H also belongs to AB. Right? If limit H tends to 0, f C plus H minus fc upon H exists. If limit H tends to 0, f C plus H minus fc upon H exists, then this value of then this limit is called derivative of function f at x equal to c. Then this limit, the value of limit, is called the derivative of function f at x equal to c, and it is denoted by f dash c or d by dx of fx at x equal to c, or dy by dx at x equal to c, where y is equal to fx. There are 3 symbols of first derivative. See again, function f is defined as AB to R, so the domain of function f is AB. It is open interval. Suppose C belongs to AB, C is a certain value. If let H is a very small real number, so that C plus H belongs to AB. So C and C plus H both belongs to AB. Then if we want to find the limit H tends to 0, fc plus H minus fc upon H, if we can find this limit, then we can say the value of this limit is the derivative of function f at point x equal to c. So it is a value at particular value. And
the first derivative is denoted by f dash c or d by dx of fx at x equal to c. Actually, we can read as derivative of function f with respect to x at x equal to c. So it is f dash c. Or dy by dx, where assume fx is equal to y, where y is equal to fx, then dy by dx. So those symbols are very normal, right? You know that in 11th we have already studied it. F dash c d by dx of fx. Actually, the डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बोलने के बजाय हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x. थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन है, फिर भी डी बाई डी एक्स ऑफ x और डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं. तो ये है डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू c. द डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू c, सो f dash c is equal to limit x tends to c, h tends to 0, f c plus h minus f c upon h, right? This is the first definition. We can write also f dash, if we assume c plus h in this from result 1, c plus h is equal to assume x, then h is equal to, so h is equal to x minus c. And what is the new limit? If h tends to 0, then x tends to c, so it is a new limit. क्योंकि जब आप h is equal to 0 यहाँ पर अप्लाई करोगे तो x is equal to c मिलेंगे, लेकिन h tends to 0, h is equal to not 0, h tends to 0, so x tends to c. So new formula is f dash c is equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c. This is the second formula, right? Now third formula. Meaning is same, but this is the different form of the definition. In second, x is equal to, suppose, first take x instead of c. From 1, take x instead of c. So f dash x is equal to limit x tends to c, limit x tends to 0, f x plus h minus fx upon h. This is very important formula. F dash x is equal to limit x tends to 0, fx plus h minus fx upon h. We are putting x instead of c in formula number 1. From formula number 3, take x plus h is equal to t, x plus h is equal to t, then h is equal to t minus x. If h tends to 0, then t tends to x. If you are putting h tends to 0, then t is equal to x, so t tends to x. So new formula is f dash x is equal to limit t tends to x, ft minus fx upon t minus x. So this is the fourth
फॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। आप यहां पे समझ सकते हैं कि जो भी डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन f dash c is equal to limit h tends to 0 f c plus h minus f c upon h, and it is the derivative of at x equal to c, derivative of function f at x equal to c. But if you want to take in general form, then put c is equal to x. So f dash x is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h. This formula is very important and it is called the first principle of derivative. Right? This formula is also very important. F dash x is equal to limit t tends to x ft minus fx upon t minus x. जो आप यहाँ पे दिखते हैं वो अलग दिखते हैं, लेकिन जो मीनिंग है वो सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? टाइप 7 है, जो कि 6 टाइप तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टाइप 7 बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2 और सम नंबर है 9 and 10। एक्सरसाइज 5 सम नंबर है 21। तो बस इतने सम है इसमें। 5.2 में 9 and 10 दो सम है। आपको यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना है, डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? इलस्ट्रेशन ही लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, तब आप आसानी से समझ सकोगे। एग्जांपल नंबर 9, एक्सरसाइज 5.2। प्रूव fx is equal to x minus 1 where x belongs to R, x is equal prove fx is equal to x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1। पर्टिकुलर वैल्यू यहां पर दी गई है। आपको यह प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। डेफिनेशन में हमने प्रिपेयर की है, इसमें क्या है? डिफरेंशिएट एट x इक्वल टू डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू c। सो फॉर्मूला विल बी f dash c is equal to limit h tends to 0 fc plus h minus fc upon h। और दूसरा फॉर्मूला लिया था f dash c is equal to limit x tends to c fx minus fc। ये फॉर्मूला आपको याद है? लिमिट f dash c is equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c। If is differentiable at x equal to c, then limit x tends to c fx minus fc upon x minus c will be exist, otherwise not। तो उसका एग्जिस्टेंस हमें, मतलब ये लिमिट हमें डिफाइन करनी है। लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट फिर से लेना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल आ गई
तो हम कह सकते हैं कि ये लिमिट का जो वैल्यू है, मतलब कि जो लिमिट है x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फाइंड करना पड़ेगा और दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि इस लिमिट का एग्जिस्टेंस है। बस अगर ये एग्जिस्ट है तो फिर हम कैसे मिलेंगे? तो हमें 1 x इज इक्वल टू 1 के आगे ये फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ f डैश 1? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। ये फॉर्मूला यहां पर बनेगी। ये फॉर्मूला इसलिए यहां पर पॉसिबल है कि बिकॉज वी वांट टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी at point x equal to 1. So we have to put value of c is equal to 1. So f dash 1, the formula will be f dash 1, limit x tends to 1, fx minus f1 upon x minus 1. ये फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये फॉर्मूला की मदद से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का लिमिट फाइंड करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि limit x tends to 1 fx minus f1 upon x minus 1 exist. So f dash 1 exist. अगर f dash 1 exist होता है तो आप आराम से कह सकेंगे कि f is differentiable at x equal to 1, बट ऐसा होगा नहीं, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूव करना है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें प्रूव कैसे करेंगे? पहले तो इसमें f1 की हमें जरूरत पड़ेगी, तो fx is equal to x minus 1, find f1, it is 0, 1 minus 1. Now limit x tends to 1 positive fx minus f1 upon x minus 1, फुल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये मैं राइट हैंड साइड के लिए फॉर्मूला लिखता हूं। fx क्या है? mod x minus 1। f1 क्या है? 0। Now you can see in numerator there is mod x minus 1. It is a modulus function, and in denominator there is x minus 1. It is polynomial. What is the value of numerator? X minus 1 over 1 minus x. What is the value of x minus 1? It is x minus 1 or 1 minus x, because there are two possibilities. But in particular case, there is x minus 1. Why? The reason is ready. Because x tends to 1 positive. In this case, x tends to 1 positive. That is why x is greater than 1. If x is greater than 1, so x minus 1 is equal to x minus 1. Now x minus 1 will be cancelled. So it is 1. Answer is 1 because it is constant function. Now limit x tends to 1 negative fx minus fx 1 upon x minus 1. यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड की है, अभी ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पे फाइंड कर रहा हूँ। फॉर्मूला इज सेम, नथिंग इज डिफरेंट, बट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट्स आर डिफरेंट। लिमिट x tends to 1 negative. What is the value of fx? It is obvious, it is x minus 1 in modulus. What is the value of f1? It is 0. यहाँ पे x minus 1 is equal to either x minus 1 or 1 minus x. But in this case, it is 1 minus x because it is right hand side limit. Sorry, left hand side limit. Left hand side limit है, तो यहाँ 1 minus x upon x minus 1. In denominator there is polynomial, but numerator it is modulus function. X tends to 1 negative, so x is less than 1. So x minus 1 is equal to 1 minus x. यहाँ पे जो मैजिक है वो मोड का है।
1 minus x minus 1 will be cancelled, so it is lit x tends to 1 negative minus 1, so answer is minus 1. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड किया 1 आंसर, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी फाइंड किया आंसर इज minus 1. So conclusion is limit x tends to 1 positive fx minus f1 upon x minus 1 is equal to naught. ये दोनों डिफरेंट है, दोनों के वैल्यू अलग अलग है, 1 and minus 1. Then what can be said? So limit x tends to 1 positive, limit x tends to 1 fx minus f1 upon x minus 1 not exist. इसका इस वैल्यू मतलब ये लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर उस ये लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है तो f'1 भी f'1 का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, सो f'1 नॉट एग्जिस्ट. अगर f'1 का एग्जिस्टेंस नहीं है तो हम कह सकेंगे f इज नॉट differentiable at x equal to 1. So it is proved that function fx is equal to x minus 1 is not differentiable at x equal to 1. अगर यहाँ पर x minus 2 दिया गया होता तो क्वेश्चन बन जाएगा function f is not differentiable at x equal to 2. यहाँ पे fx is equal to x minus 3 मोड में दिया गया होता तो फंक्शन बन जाता, क्वेश्चन बन जाता फंक्शन f is not differentiable at x equal to 3. सो जो भी मोड वाला फंक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, दोनों डिफरेंट है, तो ये x माइनस और 1 माइनस x ये दो अलग अलग हर बार आएगा. x माइनस 2 है तो भी यहाँ पर 2 माइनस x आएगा, x माइनस 3 होता तो यहाँ x माइनस 3 और यहाँ 3 माइनस x. तो ये हमेशा ये लिमिट डिफरेंट आएगी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों का वैल्यू डिफरेंट आएगा. अगर दोनों का वैल्यू अलग है तो फिर ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने लिए वो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है, ये प्लेन लिमिट नहीं है. लिमिट के जरिए हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, यह मत समझना कि लिमिट का सम है, नहीं. यहाँ पे आपने f'1 का फॉर्मूला है, जे इन जनरल इट इज f'(c), सो इट इज f'(c) इज द सिंबल ऑफ डिफरेंस. f'(c) is the symbol of function f is the derivative of function f at x equal to c. So it is the derivative of f at x equal to 1. So it is the symbol of differentiation. And this formula is also, it is a formula of differentiation. So you are finding differentiation through लिमिट. लिमिट के जरिए आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं. एक्चुअली जो भी आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो तो डिफरेंशिएशन का ही आएगा, लेकिन लिमिट का यूज करके हम ये डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं. तो जब ये लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाना चाहिए. अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो हम बोल देंगे कि डिफरेंशिएबल है. अगर दोनों का वैल्यू डिफरेंट आएगा तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट. और एक्शन आपको ये फॉर्मूला पूरी तरह पकड़ के रखना है. जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो यही फॉर्मूला आपको सबसे आसान रहेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला के जरिए आप डिफरेंशिएबिलिटी आराम से चेक कर सकते हैं.
एक और सुनो, एग्जाम्पल नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.2. Prove that the greatest integer function defined by fx is equal to fx is not differentiable at x equal to 2. जो 9th सम था उसमें हमने fx इक्वल टू x माइनस वन मोड x माइनस वन लिया था, वो मोड वाला फंक्शन था, मॉड्यूलस फंक्शन. यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन. तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि फ्लोर फंक्शन में ये होता है राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करो, डिफरेंट ही आएगी. कोई भी वैल्यू के आगे फाइंड करो, 2, 3, 4, कोई भी इंटीजर मतलब. तो इसमें तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, प्रूव यही करना है. पहले कौन सी वैल्यू के आगे प्रूव करना है तो उनका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. f'2 लिमिट x टेंड्स टू 2 fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2. बहुत ही आसान तरीका. अगर हम c के आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो f' का फॉर्मूला यही है राइट. तो अगर 2 के आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो obvious formula will be f'2 is equal to limit x tends to 2 fx minus f2 upon x minus 2. Put 2 instead of c. So formula will be, it is the formula of f'2. Now fx तो हमारे पास है ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन f2 नहीं है तो f2 फाइंड कर दो. f2 is equal to 2 क्योंकि यहाँ इंटीजर लेते हैं तो आंसर इंटीजर ही आता है. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx माइनस f2. ये फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा. कई स्टूडेंट ये फॉर्मूला नहीं लेते, लेकिन ये फॉर्मूला अगर नहीं लिखोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी आपको फाइंड करने की दिक्कत होगी. लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव. व्हाट इज fx? इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस f2 की वैल्यू 2 है. यहां पे न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है -2 है, लेकिन डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है. तो ये डिफरेंट है. लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव. नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इट इज 2. मेरे पास रीजन होता ही है, वैसे मैं नहीं लिख देता क्योंकि यहाँ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव है. x इज ग्रेटर देन 2. अगर x ग्रेटर देन 2 है तो आंसर विल बी 2. क्योंकि x ग्रेटर देन 2 का मतलब आप x इज इक्वल टू 2.1 ले लीजिए. 2.1 यहां पर रख देते हैं तो आंसर 2 आ जाता है. तो कोई भी 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं. 5 नहीं लेना है. x ग्रेटर देन 2 मैंने तो 5.1 ले लिया, ऐसा नहीं करना राइट. x ग्रेटर देन 2 का मीनिंग है बिटवीन 2 एंड 3. 3 का एक बॉर्डर है, आपको ओवरटेक नहीं करना है 3 को. अच्छा 2 माइनस 2 0. तो ये तो न्यूमरेटर में 0 आ गया तो 2 यहां पर पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी. It is 0. So answer is 0 because it is 0 is constant. Now find left hand side limit. Limit x tends to negative. fx minus f2 upon
टू, अगेन ये पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, व्हाट इज fx? fx इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं तो ये सेम जो भी है वही पुट करना है। व्हाट इज f2? 2, कोई डिफरेंट नहीं, लेकिन जो डिफरेंट यहां पर बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वजह से बनेगा। यहां जो हमने डायरेक्ट 2, यहां पर आंसर आया था हमारा, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर 2 आया था, यहां पे 2 नहीं आएगा, यहां पे 1 आएगा। क्यों भाई 1 क्यों आया? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, सो इट इज x लेस देन 2। अगर x 2 से छोटा है तो आंसर इज 1। x लेस देन 2 का मीनिंग है x बिलोंग्स टू 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 के बीच वाली कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1.5, तो आंसर तो यहाँ इंटीजर आएगा, तो आंसर 1 बनेगा। तो क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव 1 माइनस 2, इट इज -1 एंड x माइनस 2। यहां पर तो न्यूमरेटर में -1 आया, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 आया। x तो जो भी यहां लिमिट मिलेगी ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम वैल्यू यहां पुट कर ही नहीं सकते। तो लास्ट जो सम किया था हमने 9th सम, इसमें तो क्या हुआ, कम से कम वैल्यू तो दोनों की मिली थी। राइट हैंड साइड की वैल्यू उसमें 1 मिली थी, लेफ्ट हैंड साइड की -1 मिली थी, लेकिन यहाँ तो बखड़ा हो गया। लिमिट यहाँ पर 0 मिल गई, ठीक है, रियल नंबर है, लेकिन यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होती। अगर लिमिट मिलेगी नहीं तो कंपेयर तो क्या करने की बात ही नहीं आएगी। क्या कंपेयर करें? लिमिट एक की है, एक की तो है ही नहीं, तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो वैसे हम कह सकते हैं सो लिमिट x टेंड्स टू 2, मेन वाली लिमिट fx माइनस f2, जो फंक्शन की हम चेक करना चाहते हैं, इस कौन सा फंक्शन की हम चेक करना चाहते थे? लिमिट x टेंड्स टू 2 fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, ये फंक्शन की लिमिट हम फाइंड करना चाहते थे। कौन सा फंक्शन? fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, ये फंक्शन की हम लिमिट जानना चाहते थे, इसलिए हमने राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड किया। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। तो आप समझ सकते हैं, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx माइनस f2 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं है, ऑब्वियसली m-2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे लिखना पड़ेगा f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। मैं 2 के आगे तो इन्हें डिफरेंशिएबल होने की बात नहीं कर सकता। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, मान लीजिए fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है और एट x इक्वल टू 3 दिया होता, मतलब मान लीजिए 3 के आगे चेक करने के लिए आपको बोला होता है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, आपको यही बोलना पड़ेगा कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। सिमिलरली कोई भी मैं इंटीजर लेता, आपको और बार यही आंसर देना पड़ेगा कि f is not differentiable at x equal to 3, f is not fx is equal to greatest integer, या फिर सिलिंग फंक्शन दिया गया होता लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको एक ही बात बतानी पड़ेगी। फाइनल आंसर तो आपका यही आएगा, f is not differentiable at x equal to 2, f is not differentiable at x equal to 5, f is not differentiable at x equal to 7। कोई भी इंटीजर के आगे ये चेक करने की नौबत आती है, उनका आंसर यही रहेगा। सिर्फ ये जो वैल्यू है x0 आएगी और एक एग्जिस्ट नहीं होगी। तो यहां पर जो जिसने डिफरेंशिएबिलिटी
नहीं होने का जो बड़ा रोल निभाया है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सब में लास्ट सब में पूरा जो करिश्मा था वो मोड का था। यहाँ पर जो करिश्मा वाली बात है वो इंटीजर फंक्शन की वजह से, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वजह से नहीं डिफरेंशिएबल हो पा रहा है। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का करिश्मा। इट इज नॉट अ करिश्मा ऑफ करिश्मा कपूर, राइट। तो ऐसे कई सम मैंने आपको पीडीएफ में दिए हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कम है ना, तो थोड़ा ज्यादा सम तो मुझे देना पड़ेगा। तो आप ये पीडीएफ में से थोड़ा ट्राई कर लेना, और ज्यादातर जो भी सम है इसमें शायद चेक कर लेता हूँ, आंसर भी दिए गए हैं और या तो फिर प्रूव करने के लिए बोला है। एक सम थोड़ा बड़ा वाला दिया है, एग्जाम्पल नंबर 21, इसमें मैंने हिंट दी है, तो आप अच्छी तरह वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं सॉल्व करूंगा।